看。Orhan? Hala Firal.
ایپیسوڈ کے آغاز میں ملعون خاتون کو یعنی شہر کے صحن میں دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سپاہیوں سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ ملعون خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے استبل والوں کو کہو اورحان کے گھوڑے کو تیار کریں۔ یہ بات سنتے ہی فاطمہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہتی کہ والدہ ابھی تو دیوان ختم بھی نہیں ہوا اور آپ نے حکم جاری کر دیا۔ جواباً ملعون خاتون کہتی ہے کہ میں برسوں سے ان کی بیوی ہوں اور میں ان کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ایک مشکل اور لمبا دن ہوگا۔ ادھر دیوان میں عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں کہ اورحان سردار اور علاؤالدین سردار آپ دونوں اپنی رائے دیجئے۔ سب سے پہلے علاؤالدین اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سردار مجھے پتا ہے کہ میرے سردار سب سے زیادہ طاقتور اور خود کو فدا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم عوام کے طور پر ان کا ساتھ دیں تو اس سرزمین پر خوشحالی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اورحان کہتا ہے کہ ہم دشمن کی سرحدوں پر کھڑے ہیں، اناطولیہ کے سرداروں کو ان زمینوں کے لیے آپس میں لڑنے دیں۔ جب تک ہم کافروں سے لڑتے رہیں گے تخت چھوڑنے والے ہمیں آ کر ملتے رہیں گے۔ ہم تخت کی طرف جائیں یا نہ جائیں حالات ہمیں ان کی طرف دھکیل دیں گے کیونکہ ہم لڑنے والے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سپاہیوں، جب سے ہم نے اپنے دادا سلیمان کو دفن کیا ہے تب سے لے کر اب تک ہم نے اپنے گھوڑے ہر جگہ دوڑائے ہیں۔ پہلے ہماری تعداد بہت زیادہ کم تھی لیکن ہم نے پھر بہت سارے کافروں کو شکست دی۔ ہم نے دیکھا کہ حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو سنبھالے رکھنا بہت مشکل۔ مانا کہ عظیم سلجوقی ہماری آنکھوں کے سامنے گر گئے۔ کاش کہ ہماری ریاست مضبوط ہوتی اور آج ہمیں اس معاملے پر بات نہ کرنا پڑتی، لیکن ہمیں کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے لڑائی اور تخت کا دعویٰ ہمارا ہوگا۔ اب ایک نیا دور شروع ہوگا، یہ مشکل ہوگا لیکن یہ نیا دور ہمارا ہوگا۔ اب سے ترکوں کے نئے سلطان کو چننے کی جد و جہد شروع ہو چکی ہے۔ ہم ظالموں کا مقابلہ کریں گے لیکن اگر دوسرے قبیلے کے سردار ہماری پریشانی کا باعث بنے تو ہم ان سے بھی لڑیں گے۔ پھر عثمان صاحب علاؤالدین کو کہتے ہیں کہ علاؤالدین تم راہ سے پہلے کونیا پہنچو، سلطان مسعود تمہیں ایک امانت دیں گے۔ پھر اورحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اورحان تم بازنطینی سرحد کے نزدیک کچھ بغیر جھنڈے والے یعنی کہ سنجاق سی زلار گھوم رہے ہیں، انہیں اپنی صف میں شامل کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ کیونکہ یہ مشکل وقت کسی افراتفری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور بران الپ کو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بران تم تمام سرداروں کو خبر بھیج دو کہ میں اپنی بات کا اعلان 2 دن بعد کی دعوت میں کروں گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب واپس لوٹنے کی کوئی جگہ نہیں، کوشش ہماری ہے اور فتح اللہ کی۔ اس کے بعد درمیانی سرحد کے علاقے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ بازار میں درمیانی سرحد کا سردار اپنے بازار کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے جس کا نام یعقوب سردار ہوتا ہے۔ وہ تاجروں سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران 2 آدمی بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی خنجر نکال کر دوسرے کو دیتا ہے۔ خنجر کے اوپر کئی قبیلے کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ دوسرا آدمی وہ خنجر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر سردار یعقوب کہہ رہا تھا کہ میرا یہ سرحدی قائم کردہ بازار اس خطے کا سب سے زیادہ شان و شوکت والا بازار بنے گا، امیر اور غریب ہر کسی کے زخموں کا مرہم ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سن کر وہاں پر سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میرے سردار۔ اتنے میں یعقوب سردار کی بیٹی گونچا خاتون کہتی ہے کہ بابا یہ سرحدی بازار تو قائم ہو گیا لیکن کیا اس میں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوگی؟ جس پر جواباً یعقوب سردار کہتا ہے کہ اگر تم کئی سرداروں کی بات کر رہی ہو تو سب کے سب ہمارا خون اور ہماری جان ہیں، لیکن اگر تم صرف عثمان صاحب کا پوچھ رہی ہو تو ہاں انہیں بھی یہاں پر آنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ بازار کو قائم کرنے کا اصل مقصد ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے۔ اسی دوران ایک مشکوک آدمی دور سے سردار یعقوب کا نشانہ لے رہا ہوتا ہے۔ یعقوب سردار کی بیٹی اس شخص کو دیکھ لیتی ہے اور تیر چلتے ہی
उसकी बेटी याकूब सरदार को धक्का दे देती है, जिससे सरदार याकूब बच जाता है और वो तीर एक सिपाही को जाकर लगता है। ये देखकर वहाँ पर सब सिपाही अपनी ढालें आगे कर लेते हैं और अपने सरदार की हिफाजत करने लग जाते हैं, जबकि सरदार का बेटा मेहमत अपनी तीर कमान लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में उसका पीछा करने के बाद मेहमत उस शख्स तक पहुंच जाता है और तीर चलाकर उसका खात्मा कर देता है। फिर मेहमत उस शख्स के पास आ जाता है और उसकी गर्दन पर एक निशान देखता है जो कि मिटा हुआ था। इसके बाद सरदार याकूब का बेटा उस शख्स की तलाशी लेने लग जाता है, जिसके बाद उसे उसके कपड़ों में से एक खंजर मिलता है। जब वो उस खंजर को बाहर निकाल कर देखता है तो उस पर कई कबीले का निशान बना हुआ था। ये देखते ही सरदार याकूब का बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है। थोड़ी ही देर में सरदार याकूब और उसकी बेटी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो याकूब सरदार का बेटा कहता है कि बाबा, ये उस्मान साहब का काम है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। याकूब सरदार वो खंजर अपने हाथों में पकड़कर उसका मुआयना करता है और कहता है कि बेटा, जल्दबाजी में फैसला मत करो। इतने में ही उस सिपाही की हालत बहुत ख़राब हो जाती है जिसको वो तीर लगा था, और वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से जाग निकलनी शुरू हो जाती है क्योंकि उस तीर पर जहर लगा हुआ था। सरदार का बेटा मेहमत कहता है कि बाबा, ये सरदार उस्मान का काम है। तो सरदार याकूब कहता है कि उस्मान ऐसा क्यों करेगा, मेरे मरने से उसको क्या फ़ायदा होगा। इतने में ही वहाँ पर एक सिपाही आता है और सरदार याकूब को कहता है कि सरदार, कोनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, उस्मान, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। ये खबर मुझसे पहले उस्मान को मिल गई और फिर उसने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। इतने में ही सरदार का बेटा मेहमत कहता है, बाबा, मुझे इजाज़त दें कि मैं यानी शहर को तबाह बर्बाद कर दूं। जिस पर सरदार याकूब कहता है कि खबरदार, छुपकर वार करने वाले पर एलानिया वार करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। मैं उससे इसका हिसाब लूँगा, लेकिन इस जाल के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनो। गोंचा बेटी, तुम सुल्तान मसूद के मरने से पहले वहाँ पर पहुँचोगी। हम उसके वारिस हैं, इसका मोहर वाला फरमान हासिल करो। तो गोंचा खातून कहती है कि आपके हुक्म की तामील होगी बाबा। फिर सरदार याकूब अपने बेटे से मुखातिब होते हुए कहता है, मेहमत, हम पर वार करने वाला उस्मान सरदारों को अपनी सब में शामिल करने के लिए अपने एलची को रवाना कर चुका होगा। तुम्हें उन एलचियों का रास्ता रोकना होगा और उन सरदारों को मेरा साथ देना होगा। जिस पर मेहमत कहता है कि जो आपका हुक्म बाबा। फिर सरदार याकूब अपनी बेटी और बेटे को मुखातिब करते हुए कहता है, अपनी जिम्मेदारियों में कोताही से काम मत लेना। अगर ज़मीन को खून से सैराब करना भी पड़े तो कर डालो। इसके बाद गोंजा खातून और मेहमत वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद याकूब सरदार अपने सिपाही को कहता है कि ओगोस को पैगाम रवाना करो, उस्मान अपना पहला वार कर चुका, अब मेरी बारी है। दूसरी तरफ ओरहान और अलाउद्दीन सफ़र पर रवाना होने से पहले अपनी वालिदा मलहून खातून से मुलाकात कर रहे होते हैं। फिर मलहून खातून कहती है कि तुम्हारा सफ़र आसान हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती रहूँगी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इतने में ही उस्मान सरदार भी वहाँ पर आ जाते हैं और ओरहान से मिलने के बाद उसको कहते हैं, मेरे बच्चे होशियार रहना, तुम्हारा सफ़र आसान हो। बेपरचम लोगों को अपनी सफ़ में शामिल करना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस पर ओरहान कहता है कि अल्लाह के हुक्म से कामयाबी हमारे कदम चूमेगी सरदार। इसके बाद उस्मान साहब अपने दूसरे बेटे अलाउद्दीन से गले मिलते हैं और फिर कहते हैं कि कोनिया आपके हल्के में है, कौन किसके साथ है कोई नहीं पता, एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज मत करना। और फिर अपने बेटे अलाउद्दीन को एक ख़त देते हुए कहते हैं कि बेटा, ये ख़त अपने पास रखो, ये तुम्हें कोनिया में दाखिल होने में मदद करेगा, तुम्हारा सफ़र आसान हो। जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए बाबा, जो ज़रूरी होगा हम कर डालेंगे। इसके बाद अलाउद्दीन और ओरहान दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को दुआएं देने के बाद जाने लगते हैं। तो इतने में फातिमा खातून आगे से अंदर दाखिल हो जाती है और कहती है कि भाईजान, मुझसे मिले बगैर आप कहाँ जा रहे हैं? इस बार तो मैं आपको अकेले जाने की इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं खुद भी साथ जाऊँगी, इस बात को याद रखना। ये बात सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं कि नहीं, पहले तुम्हें मुझे मश्क में हराना होगा, फिर तुम जा सकोगी। इसके बाद फातिमा अपने दोनों भाइयों के गले मिलती है और उन्हें दुआएं देती है और फिर अलाउद्दीन और ओरहान अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सोगोत का मंजर दिखाया जाता है। बाला खातून को पर्दों के पीछे रखा गया था जहां वो ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी।
शायद उसे कोई ख़तरनाक बीमारी लग चुकी थी। बाला खातून की खांसने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर 2 खादमें आ जाती हैं। वो आते ही पर्दों को साइड में कर देती हैं तो देखती हैं कि बाला खातून की हालत बहुत ख़राब लग रही थी और फिर जल्दी से बाला खातून को पानी पिलाती हैं। और फिर बाला खातून कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं हलीमा की कब्र खोद रही हूँ। फिर अलाउद्दीन आ गया तो मैं मर चुकी थी, शायद मेरा वक्त आ गया है। ये बात सुनकर खादमा कहती है कि ये आप कैसी बात कर रही हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और कहा जाता है कि ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्ट होती है। इसका मतलब है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी वालिदा की ज़रूरत है। जिस पर बाला खातून कहती है कि अच्छा तो ये बात है। जिस पर खादिमा कहती है कि आपको बहुत जल्द तंदुरुस्त होना होगा बाला खातून, आपको अपने शहजादे के लिए सेहतयाब होना होगा। देखें आपका बेटा आपके लिए कितनी दूर दूर से दुआएं तैयार करके लाता है। इतने में ही बाहर से आवाज़ आती है कि हमें इजाज़त है बाला खातून, यानी शहर से एक खातून आई है। जिस पर बाला खातून कहती है कि आपको इजाज़त है, आ जाएं। तो एक खातून अंदर दाखिल होती है और कहती है कि बाला खातून, ये मलहून खातून ने आपके लिए भेजा है, यानी शहर के इत्तबा ने तैयार किया है। जिस पर बाला खातून कहती हैं कि शुक्रिया, ये बताओ कि यानी शहर में क्या चल रहा है, उस्मान, अलाउद्दीन और अरहान कैसे हैं। जिस पर वो खातून कहती हैं कि सब ठीक है, शहजादे अलाउद्दीन एक अहम काम के लिए कोनिया रवाना हो चुके हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है जिसको ला इलाज कहा जा रहा है। ये सुनते ही बाला खातून कहती है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत ज़्यादा खून बहने वाला है। इधर शहजादा अलाउद्दीन अपने चंद सिपाहियों के साथ कोनिया रवाना हो चुका था और बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ रहा होता है। तो नाजरीन, यहाँ पर ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।
Orhan? Hala Firal.